गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया. So you guys know that girl who's like known for doing the NPC trend on TikTok Live, Pinky Doll or whatever? Well, apparently she also has an OnlyFans, and recently she went on a crazy long tangent about how all of her shit was getting leaked on Google. I put Pinky Doll naked and I click on pictures. And what I see, there's a lot of page. There's a lot of page. How dare you? You gonna let other people put my face, my body out here? I'ma sue all of you. All of you are gonna sue you. I'm gonna sue you. Listen, normally I don't victim blame, but what the flying f*** did you expect? That's kind of what happens when you post your nudes online. And I get that the main complaint is because, like, it's strictly on OnlyFans, so, like, people aren't paying to see it or whatever. But, like, bruh, OnlyFans content gets leaked all the time. Not that I would know about that. It was revealed last year that people spent more than $5.6 billion on OnlyFans content last year. $5.6 billion! If you want to know how big that is the same value as the entire economy of Barbados. And with the way that OnlyFans works, the content creators get 80% of all that money. So in total, OnlyFans creators made $4.4 billion. To say that a lot of y'all are down bad is an understatement. Y'all motherfuckers are so down bad that you've practically built a hole to China and back. Like, for God's sake, go outside and touch some grass. Like, do people not know that the hub is free? And people constantly shame OnlyFans creators for doing this type of stuff. Me personally, I don't agree with that type of job. But with the amount of money they're bringing in, like, can you really blame them? Man, if I was making millions of dollars from doing that type of shit, I'd do it in a heartbeat. But there's not exactly a market out there for the one-inch wonder. These are the people that make the most money from OnlyFans. At number 9 is YouTuber Pia Mia earning $2.2 million a month. At number 8, Gem101 earning $2.3 million a month. At number 7 is TV personality Erica Mena earning $4.49 million a month. At number 6 is Bad Baby, who's estimated to earn around $52 million a year. At number 5 is everyone's favorite actress Mia Khalifa earning $6.42 million a month. Now this one really surprised me. The 4th highest earner is Tyga earning $7.69 million a month. The 3rd highest, number 3 is Cardi B, earning $9.3 million a month. Even though her subscription rate is free, Bella Thorne earns $11 million a month. And at number 1 with an estimated $20 million a month is Blac Chyna. Or were you there? Look at you with your rose. Is that like a 17. You were 17. And did you have any, did you want to be a rapper then? I always wanted to be an artist. But I just gave up on my dream because it's like I felt like music is not paying my bills. Right. So and that's when you became a stripper. Yes. Okay. And how long did you do that? I did that for 19, 20, 21, like three and a half years. 3 years. And did you like it? Did you Hell hate yeah. it? You I did. Tell me why. I mean, a lot of people want me to be like, oh, I hated it. I don't recommend it to nobody. I don't recommend it to everybody because it's not for everybody. But it made me money. It paid my bills. It got me my own apartment. It got me my boob job. ये भी कहते हैं कि देखो भाई आपकी बात तो सही है लेकिन यूएसए के अंदर स्ट्रिप क्लब्स और ये जितने भी रंडी खाने हैं ये सब होने मतलब जो भी जीबी रोड टाइप जो भी है ये सब होना चाहिए ना. वो क्यों होना चाहिए उसके डिफेंस में पता है लोग क्या कहते हैं. क्योंकि कहते हैं देखो भैया हमें अपनी ज़िंदगी में औरत चाहिए तो लाइफ टाइम सप्लाई औरत की या सेक्स के लिए शादी करना अच्छी बात ऑप्शन नहीं है. हम मतलब एक लाइफ में औरत चाहते हैं हमें उसके साथ खुदाई करनी है चोदने के लिए बेसिकली या हमें मर्द चाहिए उसका लौड़ा चूसने के लिए तो हमें उसके लिए एक कोई ना कोई पार्टनर चाहिए. तो उसके लिए हम मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ऑफ लव. और हम प्यार को सिर्फ हवस का नाम नहीं दे सकते. इसीलिए ये सारी बाइफर्केशंस देखने को मिली यूएसए में. फिज़िकल रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये सब इंडिया में कहाँ होता था पहले. इंडिया में तो कभी आप सुनोगे भी नहीं कि आपके पापा बता रहे हो कि बेटा देख हमारे बीच में खाली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स था. अगर होगा भी ये हुकअप कल्चर जो भी है ये सब चीज़ें अगर होती भी थी इंडिया में तो इवेंचुअली इन चीज़ों को कभी कोई नाम नहीं मिला. ये बस हो जाती थी, प्राकृतिक होती थी. और पुराने ज़माने में भी हिंदुस्तान में सेक्स ऐसा होता था क्योंकि राजा जो होते थे पहले वो सब जंगल में चले जाते थे, संन्यास ले लेते थे. एंशंट इंडिया की बात की जाए तो राजा की बीवी अकेली रह गई. अब अकेलेपन में सेनापति है. अब राजा तो चले गए संन्यास लेकर के और संन्यास वो मतलब ऐसा नहीं टटपूंजे कोई आसारा वो कोई
वो यू आर द लव चार्जर वाला बाबा बनने के लिए नहीं गया था, मतलब वो जेन्युइनली संन्यास, मतलब तो बीवी असंतुष्ट रह गई, नहीं मतलब वैसे में नहीं, इमोशनल फिजिकल लेवल पे, तो फिर वो सेनापति के साथ जंगल में चली जाया करती थी। अब ये बात फैक्ट शायद हो सकती है बिकॉज इफ़ यूर, और जब आप अपने पार्टनर से काफ़ी लंबे टाइम तक दूर रहते हैं तो इवेंचुअली, मतलब आई हैव सीन मैनी वीडियोज़ इन विच आर्मी के ऑफिसर्स की वाइफ उन पर अक्सर चीट करती है। उसके पीछे का साफ साफ रीज़न ये है कि वो दिन भर बाहर रहते हैं, उनका मतलब ये है कि वो कब घर पे आएँ कब जाएँ, उनका तो मतलब पता है ना, एक जगह उनके पाँव नहीं टिक सकते, वो कहीं ना कहीं घूमते ही रहेंगे। तो इवेंचुअली एक पॉइंट आ जाता है कि उनकी वाइफ घर में अकेले रहती है, वो अकेलापन उनको काटता है। यूएसए में खूब होता है कि अगर आप एक आर्मी ऑफिसर हो तो आपके साथ इनफिडेलिटी या मतलब अफेयर या फिर बाहर जाके खुदाई बहुत होगी। ऐसे मैंने बहुत वीडियोस देखे इंटरनेट पे कि मरीन्स वाइफ चीट ऑन हर, या आर्मी की जो बीवी है उन पे चीट कर रही है एंड स्लीपिंग विद एनी अदर गाय और गेटिंग मैरिड टू एन अदर गाय, क्योंकि वो यही कहेगी कि भले ही तुम देश की सेवा कर रहे हो, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आदमी औरत का साथ भी कुछ होता है और इवेंचुअली वो अगर नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्यार का मतलब ऐसा कभी मत बना लेना कि अगर औरत को खुला छोड़ दो तो गधे की तरह भगती फिरे, मतलब तो इससे बेटर ये है कि अब अमेरिकन लोग कहते हैं कि इन सब चुतियापों से अगर बचे रहना है, क्योंकि हुकअप के बाद गिल्ट भी बहुत ज़्यादा अटैच होता है, इन सब चुतियापों से अगर बचे रहना है आपको तो बेहतर ये है कि किसी रंडी को ले लो, क्यों ज़बरदस्ती किसी औरत को जा कर के परेशान करना। और इवेंचुअली लोग इसका सपोर्ट भी करते हैं कि बेटर है ना किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने से, बेहतर कि सेक्स चाहिए तो जा कर के ले लो, 10-20 डॉलर में, 5-10 डॉलर में तुमको मिल जाएगी। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ तो मतलब अब तुमको मियाँ खलीफा के साथ सोना है तो वो अलग बात है, इतनी महंगी तो मिलने वाली नहीं है जो तुम पॉर्न के वीडियोस में देखते हो। पॉर्न भी बेसिकली फ्री होता है, लेकिन लोग फिर भी इसमें बेवकूफ़ी करते हैं। लोग लिटरली ओनली फैंस जैसी चीज़ों पर करोड़ों रुपए फूंक देते हैं क्योंकि वो चूत देख रहे हैं उसमें औरत की, लेकिन वो पसंद की चूत है कि हमें चूत चाहिए या फिर किसी के मम्मे देखने हैं तो वो पसंद के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम कहीं से भी कुछ भी उठा लेंगे, तो पसंद की चूत देखनी है हमें। तो अब ये बात एकदम कितनी ज़्यादा बेहूदी है, क्योंकि भाई चूत तो चूत है, मेरी हो किसी की भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये कॉमन सेंस तुम अमेरिकन को समझाओगे वो सर पीटेगा अपना कि ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी होता है। हमने तो फलाना ढिमकाना सेम बेला थ्रोन का हमने, या फिर हमने वो उसका कितने फेमस रैपर्स का ओनली फैन सब्सक्रिप्शन लिया, अभी क्या ज़रूरत है इसकी, अब फोकट में तो है। और कई बार तो ओनली फैंस जिनका होता है, ओनली फैंस बेसिकली एक वेबसाइट होती है जहाँ पे तुम नंगे पुंगे खुदाई के, बस बेसिकली पॉर्नहब ही है, बस बेसिकली ये है कि एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ पॉर्न स्टार जिसके लिए तुमको पैसे देने पड़ेंगे। बिना पैसे के तुम वहाँ कुछ भी फ्री में एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब किसी औरत की नंगी फ़ोटो दे मतलब चूत देखने के पैसे लगेंगे, बस सीधी बात है। और वहाँ पे तुम वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो। और अमेरिकन कल्चर फक्ड अप इसीलिए क्योंकि अगर तुम कोई भी अमेरिकन कपल चैनल खोलोगे तो उनका सबका ओनली फैंस है। जूल्स एंड सॉर्ड, मैडी एंड एलाइजा, ये जितने भी हैं सबका, ये सारी बेसिकली रंडी हैं। जितनी भी कोई भी अगर कपल तुमको दिख जाए अमेरिकन, जो हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जो बिना शादी के बच्चा करके बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है अगर अमेरिकन चैनल है तो लड़की रंडी है। वो ओनली फैंस करने वाली को अब हम क्या बोलेंगे, धंधे वाली ही है वो है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, वो है। और इसी वजह से वहाँ का कल्चर भी इतना फक्ड अप हो गया है क्योंकि उनके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, तो कहीं ना कहीं वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो वीडियोस भी ऐसी बनाते हैं, रेटिंग माई गर्लफ्रेंड्स बिकिनी टू सी हाउ शी रिएक्ट्स, वॉकिंग नेकेड अराउंड टू सी हाउ माई गर्लफ्रेंड रिएक्ट्स, वॉकिंग नेकेड अराउंड माई हस्बैंड टू सी हाउ शी रिएक्ट्स, PDA इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टू सी हाउ दे रिएक्ट। प्रैंक भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वो जब ये प्रैंक जब होते हैं इतने सारे, तो इतने वाइल्ड आइडियाज़ उनको आए कहाँ से, उनको ये सारे आइडिया दिए किसने, पहली बात तो कि वॉकिंग अराउंड नेकेड टू रिकॉर्ड माई हस्बैंड्स रिएक्शन, सच में नंगी घूमती है पर वो नंगा मतलब दिखाती नहीं खुद को, मतलब वो उसका रिकॉर्ड कर गया। ये आइडिया उसको आए कहाँ से, क्योंकि वो यही करती है, वो कुछ नहीं करती, वो सच में लिटरली बाथरूम में फ़ोन ले जा करके अपने आप को रिकॉर्ड कर रही है और वो लिटरली थर्ड पार्टी पे अवेलेबल भी हैं। यहाँ की औरतों का इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि अमेरिका में अगर किसी लड़की के ओनली फैंस की फुटेज लीक हो जाए तो गुस्सा करने लगते हैं, मेरा ओनली फैंस क्यों लीक कर दिया तुमने, आई विल गो टू द अथॉरिटीज़। बहन तूने लिटरली, तो पूरी दुनिया को, मतलब वहाँ के लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि हमारे ओनली फैंस के जो न्यूड्स हैं या अडल्ट इमेजेस हैं वो इंटरनेट पे लीक कैसे हो गई। भाई तू पूरी दुनिया को पैसे दे करके अपने चूत दिखा रही है, अगर वो गूगल पे अवेलेबल हो गई इमेज तो वो ऑफेंड हो गई। मतलब कितने स्टूपिड लोग हो सकते हैं वहाँ पे और कितने बेवकूफ़ और बेअकल के हो सकते हैं। इससे तो पता चल जाता है ना कितने बेवकूफ़ और गवार किस्म के लोग हैं वहाँ पे। स्ट्रिप क्लब में नहीं, खुदाई नहीं होती है, नहीं, वहाँ पे ड्रग्स होते हैं और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बिना कपड़ों के नाचती है और बहुत सारी लड़कियाँ
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब जो पहले मतलब सोसाइटी में थे जो अब अमेरिका चले गए, तो वो किसी जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए एक तरीके से मेरे, मतलब मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स, मतलब वो मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके रिलेटिव 16-17 साल की लड़कियाँ हैं और जो स्ट्रिपर हैं, 16-17 साल की हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। कार्डी बी बहुत फेमस रैपर है अमेरिका की, वो भी 16-17 साल की उम्र में स्ट्रिपर बन गई थी। और मैं सजेस्ट नहीं, रिकमेंड कह दिए, मैं उसका स्टेटमेंट था, आई डोंट रिकमेंड ऑल ऑफ दिस टू एवरीवन, बट पैसे अच्छे मिलते हैं सबके, बीइंग अ पॉर्न स्टार यू अर्न रियली वेल, क्योंकि लोग बहुत खर्च करते हैं आप पे, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। बट पॉइंट क्या है सबका, उसके पीछे का सबका पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रिप क्लब अमेरिका में बंद हो गए, अमेरिका अफ्रीका बन जाएगा पूरा। अफ्रीका में हर 2-3 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर बहुत सारी लड़कियों का रेप हो जाता है। तो अगर अमेरिका में स्ट्रिप क्लब बंद हो गए, अडल्ट पॉर्न मैगजीन्स बंद हो गई, ये सब रंडीबाजी के काम बंद हो गए, खुला औरतों का बलात्कार स्काईरॉकेट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग भरे बैठे हैं, उनको चाहिए मतलब चाहिए, वो कहीं से भी जुगाड़ लेंगे। यह इंडिया की तरह नहीं होता कि छुप छुप के करना पड़ता है, यहाँ तो फिर भी लोग नहीं करते, सभ्यता की वजह से, थोड़ी शर्म लिहाज की वजह से, कोई संस्कारों की वजह से। और स्ट्रिप क्लब में जब आप जाते हो ना, तो पहली बात आपको जज करने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब 20-22 साल के लड़के क्लीवेज खोल खोल के आएंगे, कुछ नहीं। 70-80 साल के बुढ़े भी मैंने स्ट्रिप क्लब के, मैंने तो नहीं देखे, मतलब फ्रेंड्स ने, वो तो जाते हैं स्ट्रिप क्लब। वो अमेरिका में अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका होता है। कोई भी इंडियन स्टूडेंट है जो अमेरिका में ग्रेजुएशन कर रहा है यूएसए में, वो पक्का स्ट्रिप क्लब गया हुआ है। कनाडा में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन अमेरिका में तो होती है। तो थक गए हैं तो भैया चलो मज़े मारने के लिए, और किस लिए जाएंगे, तो चले जाते हैं वहाँ पे। लिटरली वहाँ पे सेक्स मिलना बहुत ईजी है। तो ये मेन फ़िलॉसफी है उनकी। और वहाँ पे ऐसा नहीं सब जवान बच्चे जाते हैं, 70-70, 80-80 साल के बुढ़े भी जाते हैं। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स पार्टीज़ भी होती हैं जिसमें गोवा में ये सब होती हैं चीज़ें, गोवा में होती हैं। लेकिन इसीलिए जब आप बोलेंगे अपने पेरेंट्स को कि मैं गोवा जा रहा हूँ, तो लोग ऐसे देंगे जो गोवा जा रहा है। गोवा में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए सही दिमाग लगता है, वो स्पेसिफिक जगह होती है उसके लिए। वो ऐसा नहीं कि गोवा के बीच पे जाके तुम्हें सारी रशियन मिल जाएंगे और किसी को भी तुम पेल सकते हो, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। गोवा जाओ, लड़कियों को बिकनी में देखो, खुश होकर के वापस आ जाओ। वो रेव पार्टीज़ जो होती हैं, रेव पार्टी, वो कुछ जगहों पर कुछ स्पेशल लोगों के थ्रू ही हो सकती है। वहीं तुमको सैक्स मिलेगा, लेकिन वहाँ ड्रग्स भी होती हैं। यूएसए में वीड पूरा लीगल है, तो बच्चे फूंक रहे हैं प्रॉपर अपना, वहाँ को बहन जो लंड फर्क ना पड़े किसी को, सड़क पे फूंक लो तुम, कोई फ़र्क ना पड़े। यूएसए में सब लीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट को खूब पैसा मिल रहा है। और जो एक बार ड्रग डीलिंग में घुस गया, पहली बात तो कभी बाहर नहीं आ सकता। तो अगर यूएसए में अगर आप ड्रग डीलिंग में घुस गए, तो मरते दम तक वही करनी पड़ेगी। हो सकता है मर भी जाओ उस चक्कर में, क्योंकि आपको सारे कनेक्शंस और राज पता होंगे कि इस बंदे के पास इतना मिलता है। तो इसी डर से कहीं आप पुलिस को ये बात ना बता दो, आपको मरवा दिया जाएगा। तो ड्रग डीलिंग चाहकर भी बंद नहीं हो सकती यूएसए में। गैंग वायलेंस और मास शूटिंग्स तो होती रहती है वहाँ पे। और मैं बस ये बताना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें बंद करा दी ना वहाँ पे, वहाँ का यूथ पागल हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट स्लेवरी कर रहे हैं। पैशन उनके पास है नहीं, 16-17 साल की उम्र में वो बाप बन गए हैं। पढ़ाई, ज़्यादातर ड्रॉप आउट्स हैं। 50% वर्कफोर्स जो है वो एशिया से आई हुई है। इंडिया, चाइना, ये जितने भी ताइवान, जितने भी चाइनीज़ वगैरह हैं, खूब मिलेंगे तुमको अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसा नहीं है कि एडमिशन लेकर ही जा कर के देखो, कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा जो अमेरिका में पढ़ रहा होगा, जाके पूछ लेना भाई वहाँ चाइनीज़ होते हैं, कभी भी पूछ लेना। जो कोई अमेरिका में तुम्हारा या फिर कोई फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा हो, चाइनीज़ होते हैं वहाँ पे, हर जगह तुमको चाइनीज़ मिलेंगे। ये चाइनीज़ जो हैं, ये अमेरिकन कंपनीज़ में खूब काम आते हैं, क्योंकि जापानीज़ वर्क कल्चर जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। ये हार्ड वर्किंग होता है ना हमेशा से, इसीलिए तुम चाइना का स्टडी सिस्टम देखोगे, सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक स्कूल चलता है उनका, बीच में 2-4 घंटे का लंच ब्रेक होता है। तो वो कॉर्पोरेट को ऐसा आदमी बहुत पसंद आता है, इसलिए ज़्यादातर वर्कफोर्स वहाँ पे वैसी होती है। बाकी जो होते हैं 16-17 साल की उम्र में माँ बाप बन गए, ड्रग एडिक्ट बन गए, 16 साल में 2 बच्चे पैदा कर दिए तूने, अब क्या लंड पढ़ाई पे ध्यान देगा तू? और फिर तुम सबवे में नौकरी भी कर रहे हो अपनी फ़ीस भरने के लिए, और $40,000 की स्टूडेंट डेप्थ है। तो इवेंचुअली तेरी खुद की भी इतनी औकात नहीं है कि तू ये तीनों चीज़ें साथ में मैनेज कर ले। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ जो नहीं कर पाते उनकी माँ तो चुती पड़ी है, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था आप लोगों को, अगर ये सारी चीज़ें बंद करा दी तो पूरा यूएसए एक रेप सिटी बन जाएगा। अमेरिका में हर कोई एक दूसरे की, नहीं यूएसए नहीं, कोई भी ऐसा देश हो जहाँ पे सब रंडीबाजी के काम इलीगल हो, और गाँव खेड़े में उंगलीबाजी के काम आसानी से हो जाते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं हो। पाताल लोक का डायलॉग था ना, ये छोटे मोटे उंगलीबाजी के काम तो ऐसे हो जाते हैं गाँव में। लेकिन यूएसए में सब कुछ कंसेंट से होता है, क्योंकि जो रंडी कमा रही है वो बहुत कमाती है। ऐसा नहीं जीबी रोड की तरह 100-200 रुपये में, नहीं, वहाँ पे प्रॉपर अच्छी खासी पे होती है उनकी।
और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, घर भी खरीद लेती हैं खुद का, तो अच्छा है मतलब। ठीक है, हमारे यहाँ तो रेड लाइट एरिया दे देते हैं कि भैया तुम रंडी हो तो तुम इसी जगह पे रहो, तुम्हारे लिए यही जगह है कमाठीपुरा जीबी रोड, तुम यहीं रहोगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फ्लैट में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपके पड़ोसी जो है वो रंडी है और आपको पता भी नहीं है, ये भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें मोनोगमी ये सब भी होती हैं। वहाँ के टीनेजर्स भी सेक्स के गेम्स खेलते रहते हैं, ट्रूथ डेयर सिचुएशन, STD, कि भाई हम यहाँ पे आए हुए हैं, एक लड़की उठेगी और कहेगी तुम सबको ब्लो जॉब दो। अभी ट्रूथ डेयर चल रही है, घर पे कोई है नहीं, नाइट स्टेज होते हैं वहाँ पे, नाइट स्टे में 1 नाइट स्टैंड हो जाता है, मेकआउट लव लहसुन लौड़ा लहसुन सब हो जाता है। 16 साल की उम्र में अगर गर्लफ्रेंड मेरे साथ एक बिस्तर में सो रही और पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने उसके साथ क्या क्या किया हुआ है तो मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें अगर बंद होगी तो पूरी दुनिया रेप सिटी बन जाएगी, पूरी दुनिया में औरतों का बलात्कार होगा, जितनी भी औरतें होंगी वो रांड बन के रह जाएंगी, गर्लफ्रेंड बीवी रांड सब रांड हो जाएगा। क्योंकि मर्द कहाँ जाएगा अपनी हवस बुझाने के लिए, उसके दिमाग में सेक्स घूम रहा है, उसे पटाना आता नहीं है, कैसे करेगा। पहली मुलाकात में बोलोगे भैया आपकी चूत मारनी है तो थप्पड़ मार के भगा देगी लड़की, तो इवेंचुअली क्या करोगे। लेकिन ये बात, अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे लुक एट द पॉजिटिव साइड, कितना अच्छा USA है। USA अच्छा कैसे है, मतलब उन्होंने, वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं प्रोस्टिट्यूट के साथ सो करके मर जाऊँगा लेकिन किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, उसको सेक्स के लिए किसी लड़की से शादी नहीं करनी है, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना, उनकी फ़िलॉसफी ये है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर इतना सेक्स घूम रहा है, या फिर अगर ये सारी रांडबाज के काम बंद करा दिए तो हर जगह बलात्कार होने लग जाएगा, ये बात वो कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसी नौबत आई क्यों, पहले तो मुझे ये जानना है। पहले ये तो बताओ ये नौबत आई क्यों, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे पास है, तुम्हारी कंट्री में जो ऐसे लोग पागल हो गए सेक्स के पीछे। क्योंकि उनको मिल जाता है, मिल तो हमें भी जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो वर्जिन नहीं है, पर हमारे देश में इतना पागल नहीं है ना कोई। तुम्हारे यहाँ क्यों है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पॉर्न का जो कंटेंट है वो एक्सप्लिसिटली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हमारे यहाँ तो 2014 के बाद ही जियो आया, उससे पहले इमरान हाशमी देख रहे थे हम लोग, तो उसके तो वहाँ है थोड़ा, लेकिन हालत ख़राब है। उसको बचाए रखने के लिए, अब ये बिल्कुल ऐसी बात है, कोई आदमी जला हुआ है पूरी तरीके से, 3rd डिग्री बर्न्स है, तुमने उसके बॉडी पे पानी डाल दिया, पानी उसका सब्सटीट्यूट है, इलाज नहीं है उसका। प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस, सेक्स टेप बनाना, सेलिब्रिटीज़ की सेक्स टेप लीक होना, ये सारी चीज़ें PR करती है और कहती है कि तुम ये करो तो लाइमलाइट में रहोगे। अब तुम उस औरत की ज़िंदगी सोचो कैसी होगी जो लिटरली अपना वीडियो लीक कर रही है जिसमें बंदे का लौड़ा चूस रही है ताकि वो फेमस हो जाए। आई एम लाइक सीरियसली, तुम्हें और कोई तरीका नहीं मिला फेमस होने का। फेमस जो हो रहे हैं USA में, लोगों का भी ये सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि ये साले फेमस हो रहे हैं, कौन है ये लोग। वो चार्ली डमिलियो हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि भाई तू कौन है, बहन की लोड़ी, तू है कौन, ये फेमस क्यों है, ये बताओ मुझे। है बस फेमस, दे आर फेमस फॉर बीइंग फेमस, दे आर फेमस, और लोगों को पता भी नहीं उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो फेमस हो। वाई जानवी कपूर फेमस, वाई सारा अली खान फेमस, क्योंकि वो बेटी है किसी की। अमेरिका में, पूरा अमेरिका में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हो रहे हैं आजकल, और जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उससे 50+ हैं, और वो फेमस कैसे हुए, इन्हीं सब चूतिया कांडों के चक्कर में। तो नौबत इतनी गंदी गिर गई है क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो उसका सब्सटीट्यूट है इंसान की हैवानियत को कम करने का, पर उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज कैसे होगा, एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। और इसका ये मतलब नहीं RD शर्मा पढ़ ली जा करके ना, RD शर्मा RS अग्रवाल लगाना एजुकेशन नहीं होती। एजुकेशन इनर और आउटर होती है, जो इन गधों को कभी समझ में आएगी नहीं, अंग्रेज़ों को। ये तो फक यू डैड, फक यू मॉम, फक यू बिच वगैरह करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। जेंजी का ज़माना है तो वैसे ही ये पता नहीं घर के ना घाट के पता नहीं कैसे हो रखे हैं ये। तो इवेंचुअली इसको रोका नहीं जा सकता। ये लुक्स, पर्सनैलिटी, शो ऑफ के चक्कर में अमेरिका में ये इतने ज़्यादा चीटिंग के केसेस क्यों हो जाते हैं, कैरन इतनी क्यों दिखती है वहाँ पे, ये प्री मैरिटल सेक्स और ये सारी चीज़ें इतनी क्यों बढ़ जाती हैं वहाँ पे। उसके पीछे का साफ रीज़न ये है कि लोग अक्सर लाइफस्टाइल को देख करके वहाँ पे शादी कर लेते हैं। वहाँ अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है ना अमेरिका में, कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे कि अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे। और तुम्हें अगर साबित कर दो कि 6 महीने में तुमने खुदाई नहीं करी, तुम्हारी रिलेशनशिप टूट जाएगा। वह लिव इन रिलेशनशिप भी इसीलिए है क्योंकि पता है भैंचोद कभी भी रिश्ता टूट सकता है, तो LMNI में 75% प्रॉपर्टी देने से बेहतर है भैंचोद कभी भी सामान उठा के निकल लो। लेकिन सवाल यह है ना कि इतने बुरे नौबत आ गए कि तुम इतने डर में हो कि प्यार में हो, इतने डर में रहने की क्या ज़रूरत है। हालत बुरी है इसलिए आपने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है। हालत बुरी होने क्यों थी पहले, इसका जवाब दो, उसका कोई जवाब नहीं है। क्या ज़रूरत आन पड़ी लिव इन करने की, ज़रूरत क्या है। एक डर है कि कभी कल को रिश्ता बिगड़ गया तो सामान उठा के चल दो, कोई फैमिली ड्रामा नहीं, कहीं कोई चुतियापा नहीं, कहीं कुछ नहीं। लेकिन इसके पीछे भी डर है, हर चीज़ के पीछे डर है
कि कहीं सामने वाले इंसान को कुछ होना जाए या सामने वाला इंसान हमें छोड़ के भाग ना जाए, सामने वाले इंसान के साथ हम कुछ गलत ना कर दें। बस ये 3 डर हैं, किसी को कुछ होना जाए और सामने वाला इंसान कहीं डर के मारे भाग ना जाए, बस ये 3 डर हैं। ये रंडीबाजी का काम क्यों होता रहता है? क्योंकि भाई सीधी बात है, सिंगल है तो बेहतर है किसी लड़की का बलात्कार करने से बेहतर है कि भाई सीधा चले जाओ वहाँ पे कुछ कर लो। वो बलात्कार भी होते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट को मारा पीटा भी जाता है वहाँ पे, उसकी हाथ पांव काट करके उसका मर्डर भी कर दिया जाता है। रिलीजियस कल्ट्स हैं जो कहते हैं प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते हैं, उनको मार देते हैं रिचुअल के नाम पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं बलात्कार कर दूंगा किसी का, इसलिए रंडी ला दो मेरे लिए, हाँ भैया ये लो। तो ये इसीलिए है। और दूसरा रीज़न जो हमने समझाया, ये इनफिडेलिटी के केस इतने ज़्यादा क्यों हैं वहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइफस्टाइल देख करके हम पट जाते हैं कि कोई अच्छा लड़का है जिसके साथ मैं वेल सेटल्ड हूँ, इसीलिए मैं उसके आगे पीछे घूम रहा हूँ या उसके साथ घूम रही हूँ। एनी टाइम मोहब्बत, ATM, प्यार का पंचनामा, दिल तो बच्चा है जी में जो इमरान हाशमी का रोल होता है भैया। पर वैसा क्यों होता है? क्योंकि इवेंचुअली पता है कि इस कुतिया के साथ रह करके तो कुछ होना नहीं है। तुम्हारा जो माल है, तुम्हारी जो चूत है, बुब्बे हैं, सब लटक गए हैं। उम्र तुम्हारी 25 की उम्र में तुम 35 की लग रही हो 2 बच्चे पैदा करके। अब मज़ा आ नहीं रहा देख करके, भागना पड़ेगा दूसरी तरफ। अब क्या कर सकते हैं इसमें? तो सेफ खेलो। रिलेशनशिप में रह करके चीटिंग ज़्यादा करो, शादी में मत करो। रिलेशनशिप में रह के चीटिंग ज़बरदस्त कर लो, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और इवेंचुअली आसान भी रहेगा। मतलब मैरिज तो इंस्टीट्यूशन है ना, कि लीगलाइजेशन है ना, वो नहीं होता है। प्रपोज भी करना है तो 20,000 लोगों के सामने करना है भर भर के, ताकि लोगों का शो ऑफ और सिंपैथी मिले। और जेंडर रिवील की भैंचोद पार्टी भी दे दो। बच्चे का बाप को ना भैंचोद ये नहीं पता तो पार्टी किस बात की दे रहे हो तुम, बहन के लोड़ो। बच्चे भी ज़्यादातर वहाँ पे अनप्लान्ड ही पैदा होते हैं। बच्चे का मतलब अमेरिका में अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब बच्चा है। इंडिया में ये आज भी होता है कि नहीं भाई थोड़ा फैमिली प्लानिंग कर लो, अभी नहीं करेंगे, 4-5 साल बाद करेंगे। 19 साल की लड़की रिलेशनशिप में आकर के एक बंदे के साथ घर में मूव होकर के बच्चे की बात करने लगती है। तो वहाँ का कंट्री का कितना फक्ड अप सिस्टम है, ये तो मैंने आइडिया दे दिया। अब तुमको क्या है? इंडिया में पहले अलग होता था, गन्ने के खेत में मिले, ट्रैक्टरों के पीछे चले गए, खेत में चले गए। फ्लैट में हमारी हरकतें होती नहीं थी, क्योंकि उनके पास फ्लैट नहीं है, उनके पास ओयो नहीं है, उनके पास खुद के घर हैं। अमेरिका में खुद के अपार्टमेंट वो लोग ले लेते हैं। और ऐसा नहीं कोई बड़े से घर ले लेते हैं, छोटे से घर होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। एक ज़मीन पे एक घर है, एक लॉन है, एक सेपरेट एंट्रेंस है, एक बालकनी है, बगल में गराज है, बस उसमें गाड़ी खड़ी हुई है एक, उसमें खुदाई चलती रहती है। मम्मी पापा के फ्लैट में कई बार ऐसा भी होता है अमेरिका में कि एक तुम्हारे 4-5 दोस्त हैं, वो एक लड़की को लेकर के आए, तुम किसी के घर पे नाइट स्टे कर रहे हो, मतलब दोस्त लोग आपस में किसी घर के यहाँ रुके हुए हैं और तुम सेक्स कर रहे हो और तुम्हारे माँ बाप सो रहे हो, उनको पता भी नहीं बात है। ऐसा भी होता है कि एक लड़की के साथ सेक्स करना जो तुम्हारी वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, एंड योर पेरेंट्स डोंट इवन नो अबाउट इट। तो ये चीज़ें भी USA में होती हैं। तो इसीलिए कहा है बच के रहो, थोड़ा संभल के रहो। रेडिट वाला चला दे। वहाँ पे लोगों ने लिटरली GTA वाई सिटी, जब GTA में ये स्ट्रिप क्लब वाले वीडियोस भी हमने काफ़ी देखे होंगे GTA 5 के अंदर, जिसमें प्लेयर स्ट्रिप क्लब चला जाता है। होप यू हैव ऑल सीन इट। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत गंदी हैं, क्योंकि हम इतने भूखे हो गए हैं कि हम किसी पे भी लपट सकते हैं, लूट सकते हैं, हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें कुछ दे दो फटाफट, वरना हम किसी के साथ क्या कर देंगे हमें पता नहीं। और जाहिर सी बात है जो प्रोस्टिट्यूट है उसकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद होगी, सबसे उस पर तो हम आ भी नहीं रहे। STD हो गया उसको, एड्स हो गया, $6,000 की वहाँ पे एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस देने के लिए $6,000 देने पड़ते हैं, और $400 या $45 इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर एन अमेरिकन। $30,000 अगर आपके 1 साल की कमाई है तो $6,000 तो खाली आपके एम्बुलेंस में लग जाएंगे। तो डॉक्टर आपका खाली टेम्परेचर चेक करने का आपको $300 का बिल दे देगा। $300 मतलब हो गया कुछ 20,000 रुपये, 21,000 रुपये। उसके बाद फिर उस प्रोस्टिट्यूट की ज़िंदगी कैसी होगी? 20 लोग चोद रहे हैं तुमको एक दिन में। STD हो गया, एड्स हो गया, कई बार लोग कॉन्डम भी नहीं लगाते, मारते पीटते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, मर्डर भी कर देते हैं। तो STD वगैरह हो गया तो तुम्हारा तो घर ही बिक जाएगा, तुम्हारे मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस देते हुए घर बिक जाएगा। वहाँ पे बहुत मोटा बिल बनाते हैं। वहाँ पे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ बिल बनेगा तो हर जगह मोटा बनेगा। और LA में, और अगर महंगा घर ले भी लिया वहाँ पर, तो वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस ही महीने की $100,000 देनी पड़ती है। तो महंगा घर लेने का भी कोई फ़ायदा है नहीं इवेंचुअली। वहाँ पे होमलेस लोग घूमते रहते हैं, ड्रग एडिक्ट्स घूमते रहते हैं, उनको लोग कुत्ते की तरह दुत्कारते रहते हैं कि माँ चुदा अपनी बहन के लोड़े, उन्हें मारते पीटते रहते हैं। और अगर होमलेस हो गए गलती से भी तो कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी।
लोगों से पैसे मांगने जाओगे, कुत्ते की तरह मार पीट के निकालेगा, माँ चुदा अपनी भोसड़ी के, भगले यहाँ से, जान से मार दूंगा, गेट अ फकिंग जॉब। वो इतने इनसेंसिटिव हैं वो लोग, वहाँ झाट नहीं फर्क पड़ने वाला, माँ चुद देंगे तेरी। तो इवेंचुअली ये होता है। तो इसीलिए वहाँ पे कहा जाता है भूखे मर जाना, कभी भी अमेरिका में होमलेस मत होना, घर कभी मत बेचना, क्योंकि वहाँ के जितने खर्चे हैं, मतलब बहुत है खर्चे वहाँ के यार, मर जाओगे चुकाते चुकाते। तो इवेंचुअली वहाँ कहा जाता है होमलेस कभी मत होना। लेकिन वहाँ के माँ बाप भी ऐसी हैं, 18 साल के होते ही बच्चों को घर से निकाल देते कि आप जाओ अपना रहो, हमारी छाती पे मत चढ़ो। उन्होंने पैदा भी इसीलिए किया होगा कि भाई कब हमें इससे छुटकारा मिले। इंडिया में भी लोग ऐसे ही पैदा करते हैं इंडिया में, लेकिन फैमिली प्लानिंग होती है, वहाँ नहीं होती ना फैमिली प्लानिंग। वहाँ तो बस ऐसे ही करना था, कर दिया, हो गया जी, हो गया, बस हो गया। जैसे टट्टी निकलती है, पेशाब निकलता है, मूत्र निकलता है, बस वैसे ही बच्चा भी हो गया। दिमाग नहीं लगाते वो लोग ज़्यादा। हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी आजकल यही कर रहे हैं, प्रेगनेंसी पहले होती है, मैरिज बाद में होती है। तो बिन शादी के बच्चे कलयुग में होंगे, ये तो गीता में लिखा हुआ था। तो इवेंचुअली तुमको समझ में आ गया। वहाँ पॉर्न मैगजीन्स बिल्कुल बंद हो गए हैं, पहले पीक पर थी, लेकिन अब मैगजीन को लेता नहीं है, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी अलग हो गई हैं। मैं सेक्स करूँगा या नहीं, नहीं नहीं, मेरा एकदम सिंपल है। देखो मैं 12-13 प्रोस्टिट्यूट बुला लूँगा अपने घर में, अगर अमेरिका में हुआ तो उन सबको बोलूँगा मेरे साथ जो चाहे वो कर लो। आई वॉन्ट, देखो मेरा तो अपनी लस्ट पे कंट्रोल है, जिस दिन नहीं हुआ तो मैं भी बुला लूँगा रंडी, मुझे कोई शर्म नहीं है। हाँ मैं बुला लूँगा, और पुलिस वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, आस पड़ोसी भी कुछ नहीं कहते, पड़ोसी भी पड़ोसी को जानता नहीं है। और इवेंचुअली वहाँ पे सेफ़ इसलिए रहता है क्योंकि 9 से 5 बच्चों को डे केयर में छोड़ देते हैं। डे केयर समझते हो ना, हमारे यहाँ से पता होता है, बीवी हाउसवाइफ है तो बच्चे का ख्याल रख रही है, या उसको डे केयर में छोड़ दिया होता है ना, प्ले स्कूल डे केयर में बच्चों को छोड़ाते हैं। तो माँ बाप अपना बिजी हैं, दोनों काम कर रहे हैं क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं, और बच्चा अपना डे केयर में है। तो इवेंचुअली वही ये कल्चर वहाँ पर है। तो 9 से 5 आपको कोई बंदा दिखेगा नहीं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात तुमको दिखेगी सड़क पे, कोई नहीं, खाली, पूरा मोहल्ला खाली है। गाड़ियाँ भी शायद पार्किंग में भी नहीं खड़ी, बाहर खड़ी हैं। इसलिए चोरी चकारी के बहुत होते हैं वहाँ पे। अगर जाओगे घंटी बजाओगे तो रिंग बेल कैमरास होते हैं, चोरी बहुत होती है वहाँ पे। तो ऐसा होता है कि तुम्हारी घंटी के अंदर ही कैमरा फिट होता है, तो तुम घंटी के ज़रिए देख सकते हो तुम्हारे डोर पे कौन है। वहाँ पे बहुत सारे लोग रात को ऐसे ही आ जाते हैं, उन्हें पता है 9 से 5 की नौकरी है इसकी, तब तक पूरा मोहल्ला खाली है, तो घर से ही कुछ सामान उड़वा लो। कई बार रात को भी ड्रग लेकर के कोई हो सकता है तुम्हारे कमरे में आ जाए, हैवी को बंदा नॉक कर देता है, हाँ भाई खोल दरवाज़ा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अच्छा क्या हुआ सर? और तेरी तो मार दिया उसको, सारा सामान लूट के ले गए। तो संभल के बहुत रहना पड़ता है। लाइसेंस्ड गन वहाँ पे इजीली मिल जाती है, वहाँ पे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। वॉलमार्ट से बंदूक उठा के खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, वॉलमार्ट में मिल जाती है। कुछ गन स्टेट में गन्स इलीगल है, इसीलिए अमेरिका को अबॉर्शन इलीगल कराना पड़ा, क्योंकि वहाँ लोग इतनी खुदाई करने लग गए बिना शादी के, इतने बच्चे पैदा करने लग गए, इतने चुतिया गए, क्योंकि सेक्स बिल्कुल शेर के मुंह को खून लगने जैसा होता है। वहाँ लोग इतनी खुदाई करने लग गए कि अमेरिका को अबॉर्शन बंद कराना पड़ा, कि तुम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, ऑर्फनेज में अडॉप्शन के लिए दे आते हो तुम साले, बच्चे पैदा करके कूड़े के ढेर में फेंकाते हो उसे। अच्छी बात नहीं है, देखो अच्छी बात नहीं है ये। अबॉर्शन इलीगल कराओ उनका, ताकि अब कोई भी बंदा अगर सेक्स करे तो उसमें कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि कॉन्डम लगा के करे। वहाँ के लोगों में इतनी अकल भी नहीं है, जबकि अमेरिका है वो ऐसा नहीं कि इंडिया है। इंडिया में समझ में आता है, चलो इंडिया में अलग सीन है, लड़का लड़की आपस में सेक्स करते हैं, प्रेग्नेंट हो जाती है, मुंह छुपाने के लिए शादी कर लेते हैं। अगर शादी के बाद कर लिया सेक्स तो कभी भी अगर हो गया तो कह देते हैं कि बच्चा तो इवेंचुअली आज नहीं तो कल होना ही था, तो हो गया। बीवी के दिमाग में भी ये बात बैठा दी जाती है कि शादी हो गया, बच्चा एक तो होना ही चाहिए ना। ये सब बेकार की बातें, घटिया चीज़ें इंडिया में भी हैं। ये रूडिमेंट्री आइडियाज़ हैं। और ऐसा भी होता है मियाँ बीवी अकेले घर में हैं तो चलो सेक्स हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लड़की अचानक से प्रेग्नेंट होगी और घर वालों को ये बात पता चल गई, फिर डिलीवरी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अबॉर्शन तो वो लेगी नहीं। सास ससुर उसे परेशान करते रहेंगे, बेटा कर ले, बच्चा कर लो, देखो जी कर लो। और अगर नहीं करा उसने तो उसी को गाली देंगे, उसको रांड छमाल छनिया कहेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। घर वाले आपस में एक दूसरे को इतना इंटरफेयर करेंगे कि कर बच्चा कर पोते का मुंह कब दिखाएगी, बार बार ये सब बकवास करते रहेंगे, हे गोद कब भरेगी। तो तुम सेक्स भी कहीं ना कहीं, बच्चे भी फैमिली प्रेशर में आकर के पैदा कर रहे हो इंडिया में। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अगर तुम ये बोलो कि नहीं भाई ये तो हमारा खुद का डिसीजन था, तो ये एकदम बेकार बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें इनडायरेक्टली तुम्हारे बाद में सबलिमिनली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठा दी गई है कि इवेंचुअली बच्चा चाहिए। तो मैं अचानक से नीड फील करवाई गई है शादी के पहले दिन से। सुहागरात का बिस्तर तैयार होता नहीं है, लड़की को बोलना शुरू कर देते, अरे सुनो अब ना तुम्हें समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। उससे बच्ची नहीं है वो,
करना होगा कर लेगी, तू मत आ बीच में। सुहागरात वाले दिन ही शुरू हो जाता है, भाई ये कॉन्डम ले ले, लेना मैंगो फ्लेवर है, गामा सूत्रा नया पेलना। अरे मैं तो 5-5 रखता हूँ अपने अंदर यार, क्योंकि इंडिया में जब लोगों को सेक्स मिलता है ना, वो 18-19 के हो जाते हैं, तो उनमें इतनी अक्ल आ जाती है। कोई भी बैचलर का कमरा तुम देखोगे 5 से 6 चॉकलेट प्रोटेक्शन अपने पास रखेगा। कोई भी बैचलर का कमरा देख लोगे तुम, जो अकेला फ्लैट में रह रहा हो, जिसको खुदाई मिल रही है, दारू के नशे में भी वो कॉन्डम पहन के कर लेगा। अमेरिका में नहीं है, वो 16-17 साल की उम्र में खुदाई कर रहा है, उसमें इतनी अक्ल थोड़ी होगी। 16-17 भी नहीं, 14-15 से ही लग गया था। जब से लंड खड़ा हुआ है तब से वो करे जा रहे हैं। 13 में भी लग गए थे। 14 की उम्र में जो लड़की माँ बन गई तो जाहिर सी बात है, सोच ही लो क्या ही बोले उस पर। और बच्चे पैदा होने के बाद ही अक्सर अमेरिका में बहुत ऐसा होता है कि बच्चा अपनी माँ की शादी में होता है, कि तुम पहले आए माँ बाद में आई, तो बड़ा अजीब हो जाता है। और पिता को अगर बात पता चल गई कि लड़की प्रेग्नेंट है, तो अमेरिका में वह बैकआउट कर जाते हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ तेरे साथ, मैं नहीं रहने वाला तेरे साथ, तू माचुदा अपनी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर लड़की एज ए सिंगल मदर उसको रेस करती है। फिर देखते हैं क्या होता है। वहाँ सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट भी है, और फिर सिंगल मदर होने की वजह से लड़की अल्कोहलिज्म और ड्रग्स में चली जाती है। बहुत सारे फेमस लोग हैं अमेरिका में, रैपर जितने भी हैं, तुम उनकी लाइफ अगर उठा के देखोगे उनके साथ यही है। वो सिंगल पेरेंट थे, वो बच्चे कैसे हुए अब ये मत पूछना। उनकी माँ चरस के नशे में डूब गई, कबीर सिंह बन गई क्योंकि ब्रेकअप हो गया, तो बस फिर ख़त्म, बात हो गया ख़त्म। फिर माँ ड्रग्स लेते लेते ओवरडोज की वजह से मर गई। फिर हम लोग और जॉब्स करते थे बचपन से ही हम क्राइम वर्ल्ड में आ गए पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि अब घर के खर्चे चलाने हैं। माँ साली टुन रहती है नशे में, घर का खर्चा चलाना है, तो जिम्मेदारी हम पे बहुत कम उम्र में आ गई। इसी वजह से फिर हम ड्रग्स, गन्स, मेथ, ब्रेकिंग बैड देखा है ना, जो जो होता है उसमें वो सब हम उसमें लग गए। 50 सेंट हो गए, DMX हो गए, किसी की भी बायोग्राफी उठा के पढ़ लो रैपर की, तुम्हें अपने आप आइडिया हो जाएगा। सेक्टर X की बायो का मैं सोच रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तभी तुमको समझ में आएगा। तो वहाँ ये हालात हैं, वहाँ नहीं चलेगा ऐसा ऐसा नहीं होना, वो नहीं होना ना, वहाँ खूब चलेगा ये, वहाँ चोट देंगे बिल्कुल। लड़के के साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इवेंचुअली ऐसे शोज़ भी चलते हैं जो मैंने देखे हैं, जिनके अंदर बोला जाता है यू आर नॉट द फादर। वहाँ लोगों का इतना ज़्यादा गंदा हाल है कि उनकी ऐसी गंदी हालत हो जाती है द यू आर नॉट द फादर। मैंने बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ भी देखे, उनका क्लिप मैं डाल दूंगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, पर उससे तुमको आइडिया हो सकता है। नेशनल टेलीविज़न पे सबसे बड़ी डिबेट यही है कि बच्चे का बाप कौन है। इतनी बड़ी डिबेट है क्योंकि इतने लोगों के साथ लड़की सो चुके हैं, उसको खुद को ही नहीं याद मैंने किसकी ली थी। उसके बाद डायरी होती है कि मैंने कितनों की ली थी, कब ली थी, क्योंकि डायरी बनाओगे पेन ड्राइव में रखना पड़ेगा, इतना बफर स्टॉक है उसके अंदर, दुनिया भर का मुठ है उसकी जूत के अंदर। किसका कहाँ कौन सा है ये नहीं समझ में आ रहा। मेन रीज़न ये भी होता है रिलेशनशिप में आग डालने का, कि एक्स गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, सुनो बोला क्या है, कि मेरा एक बच्चा है वो 5 साल का है, तो मुझे लगता है शायद वो तुम्हारा है। अब ये बात अमेरिका में रहने वाले बंदे को पता चली जब वो अपनी वाइफ से शादी करने वाला था, अगले दिन उसकी शादी है, तो वो सीधा बताता है गर्लफ्रेंड अपना सर पकड़ के बैठी है, अब दामाद अपना सर पकड़ के बैठा है, सास ससुर एक दूसरे को देख रहे हैं। वो ठीक है, तू तो मेरे से भी 4 कदम आगे निकला। उस बच्चे का लाइफ क्या होगा? पॉपकॉर्न है, तेरा बाप कौन है। मतलब लिटरली वो औरत कितनी बेवकूफ़ है, उसने 5 लोगों के साथ सोई है, बहुत सारे लोगों के साथ सोती रहती है, उसे खुद को नहीं पता बच्चे का बाप कौन है। बच्चा 4 साल का हुआ तब जाके उसको ये बात पता चली इसका बाप कौन है, यार ढूंढती हूँ चलो। तो सबको अपने सारे एक्स को फ़ोन करके, सुनो हो सकता है तुम्हारा छोटा भाई, शादी भले ही तुम्हारी है, बच्चा मैं लेके आ रही हूँ, छोटा भाई तुम्हारा है। कह रहा बहन जब बता दी क्या यार, कसम से क्या लौड़े लग गए साले के, चूतिया बहन। हमारी तो कट गई बेटा, तुम्हारी कटेगी अब। ओ भाई पॉप कौन है, तेरा बाप कौन है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।